North Centralese island, they are not exposed to such kind of things and they have no such kind of immunity. तो उनकी पूरी population wipe out हो सकती है अगर मेन लैंड से हम जाकर के उनसे interact करते हैं. So they need special kind of protection, they need their own habitat. That's why the law is there. Hello and welcome to the 9th lecture of Ethics Terminology series, and today we are going to discuss social justice. In the last lecture we have discussed the concept of justice. We have seen that justice refers to fairness, the act of being fair, and also having any absence of prejudice. हमने देखा कि fairness कैसे ensure की जाती है. Justice in not only in the sense of court justice or the judges or the judiciaries on the judiciary's part, but also on the part of the public servant or the public offices. कैसे आप executive की तरफ से justice को ensure करते हैं, not only the judiciary. तो जब भी सिविल सर्वेंट जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है उनके पास डिसीजन मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, दे आर गोइंग टू टेक सम डिसीजंस, दे हैव टू इंश्योर जस्टिस. जस्टिस हैज़ टू इंक्लूड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, unbiasedness and absence of any prejudice. Here we are going to discuss one corollary of justice, that is social justice. It is relevant in Indian context very much because we have a lot of people who are under poverty and lot of population which is not even having basic amenities of life. So that's why social justice, concepts like social justice come into play. And as usual we will start with the keywords associated with this particular concept of social justice. My name is Anurag Kashyap. I am the author of Handbook of Ethics. I am a retired marine officer and I'll be discussing all these 100 terminologies. So let us start with the keywords associated with social justice. Whenever you are writing any definition, a standard definition, keywords always, along with the examples of course, keywords play a major role in attracting the interest of the examiner. अगर आपको keywords पता है कि social justice में हम क्या लिख सकते हैं, social justice में क्या क्या refer करता है, एक या फिर एनी कॉन्सेप्ट लाइक लेट्स से इंटीग्रिटी हमने डिस्कस किया था. अगर आपको याद आ रहा हो उस लेक्चर में, इंटीग्रिटी रिफर्स टू स्ट्रॉन्ग मॉरल्स एंड क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट फ्रॉम द कोर इवन इफ द पीपल आर नॉट वाचिंग यू. सम काइंड ऑफ कोटेशंस आर आल्सो देयर इन इंटीग्रिटी की. हमने वॉरेन बफे की कोटेशन को डिस्कस किया था. So similarly, the keywords associated with the definition of social justice we are going to see. Social justice refers to taking care of a particular section of people who are specially disadvantaged. They have special needs. For example, LGBT, they feel exclusion. तो इनके लिए, या फिर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस लाइक SC, ST, OBC. सो इस तरह के प्रोविजंस जो है, दैट इज यू हैव टू इंश्योर दैट दीज marginalized sections are going to get justice. So that is known as social justice, where you have to go extra mile and ensure fairness, resource distribution, rewards and duties. In order, you have to arrange them in such a manner that a fair play is ensured between the people who do not possess. Let's say an educated person is there and an uneducated person is also there. So you have to provide amenities more to the person who is disadvantaged, who does not know how to operate the things, who have very less avenues of earning in their earning potential. That's why I will give you an example of one act, that is one popular act of government, Narega Act, which ensures that unskillful 100-day work, now इसको expand भी किया गया है, 100 days work is given to the people who are kind of unskilled or manual labor में जो indulge करते हैं. Because the people, let's compare the people who are not very much highly skilled. The highly skilled people, they tend to find better jobs, their employability is much more many times as compared to the people who do not have any skills, who are not properly educated. That's why these kind of provisions, यहाँ पे गारंटी दी गई है कि अगर अनस्किल्ड लेबर है रूरल एरियाज में, उसको अर्बन में भी कोशिश की गई है इसको इम्प्लीमेंट करने की. और उसके बाद नेचर ऑफ द वर्क को भी चेंज किया गया है, रूडिमेंट्री वर्क से थोड़ा सा उसको और एनहेंस किया गया है. Here that is the part of the polity and current affairs, but here the idea is that
idea is that you have to serve some kind of justice, that is the people who are not capable, who are not very skilled, then also then you have to provide some special protection, that is 100 days का तो उनको कम से कम रूरल एरियाज में एक वर्क मिलना चाहिए अनस्किल्ड. सिमिलरली रिजर्वेशन सर्व द पर्पस. देयर इज अ ग्रेट डिटेल वेदर debate whether the reservation should be there in the public offices or not, that is another thing, but the idea behind the reservations in our constitution, because it does not discriminate on the basis of sex, caste, gender, race or religion, but still it provides for special clauses हैं जहाँ पे वो positive discrimination. So positive discrimination is a corollary of social justice. आपको ensure करना है कि जो disadvantaged हैं उसको कैसे आप justice करेंगे. Let's have a look at this particular सोशल जस्टिस इन जनरल सेंस जो डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्विकली हम उसको यूटिलिटी देखेंगे सिविल सर्विसेज में. सो हियर वी कैन सी सोशल जस्टिस मीन्स जस्टिस इन टर्म्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेजेस इन द सोसाइटी. तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन, जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, privileges, and should take into account of special needs. That is, if a person is, let's say, tribal and they have special needs, they live only in the forest, तो वहाँ के एरियाज में कंस्ट्रक्शन करना, वहाँ के एरियाज में डेवलपमेंट इनडिस्क्रिमिनेटली कर देना, और वो जो 1000 ईयर्स से वो जो ट्राइबल्स वहाँ पे रह रहे हैं, दैट्स वाई अगर आपको पता होगा नॉर्थ सेंटिनलीज द आइलैंड पे जो ट्राइब्स रह रहे हैं वहाँ पे, दे आर protected by law of government of India, that nobody from mainland or for any country they cannot directly get into the contact. Only the anthropologist or government officials are at times they will go and contact, और वो भी बहुत ज़्यादा isolated होगा, because the kind of disease, the kind of virus, the kind of bacteria that we mainland people are carrying since 50 years, 50,000 years, those people, North Centralese Island, they are not exposed to such kind of things and they have no सच काइंड ऑफ इम्यूनिटी. तो उनकी पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो सकती है अगर मेन लैंड से हम जाकर के उनसे इंटरेक्ट करते हैं. सो दे नीड स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, दे नीड देयर ओन हैबिटेट. दैट्स वाई द लॉ इज देयर. सो इफ वी आर प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया. दैट Andaman Nicobar Island is a part of India. I was there. I have served 6 months Port Blair to mainland India, and the ship was passenger ship. Merchant Navy में जब भी आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आप थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा मिलती हैं. So we tend to interact with general public who is there in the Port Blair, और जो अंडमान में जो नॉर्मल पीपल हैं, मोस्टली आर्म फोर्सेज है, मोस्टली उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर. बट यू आर नॉट सपोज टू, इवन इफ यू आर ऑफिसर, यू आर नॉट सपोज टू गो टू दोज particular islands which are prohibited, which are well protected areas for their own benefits and all. That's why social justice matters. That's why special need of the people matters. Let's have a look at this. Educate, agitate and organize is the quotation. If you, अगर आपने ये स्लाइड खुलते ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज सेड दिस. in order to achieve social justice, you have to educate those masses who are marginalized, the people who do not possess the tools and resources. Them first you have to educate them, that is proper education has to be there. Then you have to make them aware about, agitate them. जो feelings होनी चाहिए, जो attitude होना चाहिए, आपको agitate करना है कि yes you are also entitled to go to the temples, yes you are also entitled to equality and equal access of services, education and all. Then you have to organize these in a more structured manner. So here we can see social justice. In order to ensure social justice, you can write that we can educate the disadvantaged, we can agitate them, we can organize them. This is the standard quotation by Dr. B.R. Ambedkar. You must, if you remember, you can quote it. Noteworthy points to remember: the principle of treating equals equally implies unequals must also be treated unequally. Like in last lecture I have discussed, where justice I was discussing, social justice है, वहाँ पे मैंने justice का एग्जाम्पल दिया कि 5th क्लास के स्टूडेंट को 5th का पेपर देना है, आपको 12th क्लास के स्टूडेंट को उस डिफिकल्टी लेवल का पेपर देना है, तभी जस्टिस सर्व होगी. अनइक्वल्स मस्ट बी सर्व अनइक्वली. अ पर्सन फ्रॉम हिंटरलैंड कैन नॉट बी सेड टू बी, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास, उनको आप टेक्निकल पेपर दे करके या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में जज करेंगे वर्सेज अ पर्सन हु इज़ एजुकेटेड इन सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, और उनको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस रहा है. तो यहाँ पे भी ये बायस है, उसको कम करना है. यू कैन प्रोवाइड टेक्निकल education to the people who cannot afford that. That's what the duty of state is. That's what the duty of public offices and public servants are.
तो पब्लिक सर्विस को, स्टेट को, गवर्नमेंट को इसी इनइक्वालिटी को कम करना है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज अ कॉरिलरी. आई टोल्ड यू रिजर्वेशंस आर देयर, ग्रेट डिबेट्स आर देयर, एंड कमेंट सेक्शन में भी कई बार हीटेड डिबेट्स होते हैं. बट please keep in mind that our personal ideas, our personal values are well respected, and a person tend to have subjective views of the things. But here if you have to write about positive discrimination, आपको उसके pros and cons लिखना है, analyze करना है. जो भी judgments हैं अभी तक की रिजर्वेशन की, आपको उसको neutrally, examiner is going to see your awareness, they are not going to see your emotional कंपोनेंट ऑफ योर बिहेवियर और रिएक्शनरी टूवर्ड्स कि कहाँ पे क्या रिजर्वेशन है और किस सोसाइटी के स्टेटा को डिसएडवांटेज हो रहा है. वी नो दैट देयर इज अ डिबेट, सो ट्राई टू एनालाइज दोज डिबेट सिंस थ्रू कोर्ट केसेस जो हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी इश्यूज हैं, और क्या अभी EWS का जो रिजर्वेशन आया है उसके थ्रू जो डिबेट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड इसके अराउंड जो भी डिबेट है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं. एज सच द थिंग्स विच आर डिबेटेबल, विच आर क्वाइट कंट्रोवर्शियल, दे आर नॉट आस्क्ड बाय यूपीएससी. ये बहुत देखा गया है, और वो इस तरह से भी पूछते हैं कई बार कि आप उसमें कंट्रोवर्शियल आपको लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन राइट योर आंसर्स बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स. टू इंश्योर दैट मिनिमम लेवल ऑफ इंक्लूजन एंड ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स आर देयर, वी हैव सीन इसका एक टूल है, मैं आपको बताऊंगा. इसका एक टूल है सोशल ऑडिट. इफ इट इज विजिबल हियर, सोशल ऑडिट. इसमें क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे जो भी कोई प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, तो वहाँ की जो सोसाइटी है, पर्टिकुलरली रूरल पीपल, जो ट्राइबल्स हैं, उनसे ये पूछा जाता है, उनसे ये फीडबैक लिया जाता है वेदर दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज वाइबल, वेदर is it going to impact your culture, your particular association with the nature and all. तो इस तरह के फीडबैक्स किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के स्टेट उस चीज़ को देख सकता है कि वहाँ पे वो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड को डेवलप कर रहे हैं, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अलाइंड है कि नहीं, आर दे गोइंग टू सर्व द पर्पज. दैट्स वाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर. दैट्स वाई ट्राइबल्स के लिए जो डेवलपमेंट होता है उनमें इंक्लूजन का एक पार्ट होता है. ये सारी चीज़ें हैं. सोशल ऑडिट के थ्रू एक टूल है जिससे कि आप सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं. फर्दर देर आर लाइक मिनिमम लेवल ऑफ इंक्लूजन, देन यूपीएससी प्रमोटिंग फीमेल कैंडिडेट्स वेयर दे आर नॉट टेकिंग द फी फॉर द एडमिशन फी, जो है, जो भी फॉर्म भरने की फ़ी है, वो फीमेल कैंडिडेट से नहीं लेते. दैट काइंड ऑफ सोशल जस्टिस इज देयर. एंड SC/ST का रिजर्वेशन हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को डिटेल में अभी डिस्कस ही किया था. देन हियर इट इज फिजिकल, इफ इट इज विजिबल टू यू, फिजिकल डिसेबिलिटीज, एज, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सम अदर फैक्टर्स. लाइक एक केस स्टडी भी है जहाँ पे ओल्ड कपल है, वो आए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे सोशल जस्टिस इंश्योर करना है. नॉट ओनली जस्टिस बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट द पीपल हु आर ओल्ड, दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एवरीथिंग करेक्ट एंड एवरी डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी अपराइट. तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो एक पब्लिक ऑफिस है उनके लिए कैसे एक फैसिलिटेट कर सकता है, फैसिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं, आप टीम्स को डेडिकेट कर सकते हैं. Nowadays banks are going to the people who cannot come actually to the bank, and they are opening their accounts and then serving the society. That kind of activity can also be undertaken by civil administration. और बहुत सारी गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, they have started these kind of things जहाँ पे pro people schemes के through they are reaching more people, inclusion is focused, more public centered services are being offered. Within 3 days, more than 8,000 people were dead in Bhopal gas tragedy. So here there is a demand of social justice. There is a demand that the culprits, the people responsible, the director and CEOs who are sitting in America, they should be held accountable. तो इसका एक डिबेट है, अगर आपको पढ़ना है तो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे आप पढ़ सकते हैं. वहाँ से कुछ आप देखें कि किस तरह की जस्टिस है और क्या किस तरह से हम उन सारे कल्प्रिट्स को उसकी सज़ा दिला सकते हैं. ये वाला जो डिबेट है इसको भी आप देखें, सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं. लेट्स फर्दर मूव ऑन एंड हैव अ लुक एट दी यूटिलिटी ऑफ सोशल जस्टिस इन सिविल सर्विसेज. एज यूजुअल लेट मी रीड आउट सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन है. ये कई बार ऑब्जर्वेशंस आप देख सकते हैं सेकेंड ARC की, कई बार ऑब्जर्वेशंस भी आप कोट कर सकते हैं, वहाँ से आप एसेंस ले सकते हैं, नॉट वर्ड बाय वर्ड, बट यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, अंडरस्टैंड दिस, आई ट्राई टू कोट दिस. Why do we need social justice in public services? Here, the population of the country has multiplied geometrically. Population has exponentially grown, but the avenues of social justice or expectations, the expectation of the people of India for social justice are far more acute than before. That is, the population has exploded, but the avenues, किस तरह से उनको particular job में representation मिल रहा है, किस तरह से उनके पास tools of education हैं in tribal areas,
द स्कूल्स आर नॉट देयर, स्कूल्स, एकलव्य स्कूल के बारे में आप लिख सकते हैं जो ट्राइबल एरियाज का है। आर दे proportionally increasing or not? Are the people who are in the hinterlands, they are getting the health care and welfare services or not? तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। Second Administrative Reforms Commission has said that population has exploded but the avenues of getting social justice are quite limited. Holders of public office have a duty to ensure the just distribution of resources that is depending upon the need of the people. That is, it should not be equal, like 50-50 आपको देने की जरूरत नहीं है रिच पीपल को और पुअर पीपल को। पुअर को आप दे सकते हैं 60 और 70 फॉर दैट मैटर, एंड एफ्लुएंट पीपल को आप 30 वैक्सीन भी देंगे तो वो प्राइवेट में जाकर के उसको अवेल कर सकते हैं। बट इट हैज़ टू बी इन अ मैनर विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ टू सर्व द पर्पज ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को फुलफिल करने के लिए आपको जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो डिसएडवांटेज हैं, उनको ज़्यादा आपको ये देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द पुअर रिच पीपल, बिकॉज रिच आर ऑलरेडी एफ्लुएंट, दे कैन गो एंड टेक द वैक्सीनेशन इन प्राइवेट। तो एक एग्जांपल हो गया यहाँ पे वैक्सीनेशन का, जहाँ पे फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वैक्सीनेशन का है, इवन टैक्सेस भी है कि आफ्टर फ्यू मिनिमम रिक्वायरमेंट इज देयर ऑफ इनकम टैक्स, जहाँ तक टैक्स नहीं लगेगा यानी कि गरीब को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट आर अनदर स्टोरी एंड मैटर ऑफ डिबेट कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में गरीबों को भी देना पड़ता है, बट टू द एक्सटेंट डायरेक्ट टैक्सेस जहाँ पे लग रहे हैं द पुअर पीपल आर प्रोटेक्टेड, एंड द डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स दे आर प्रोग्रेसिव। फर्स्ट फ्यू स्लैब्स में आपको थोड़ा कम देना पड़ता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है द प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम टैक्स टेकन एज टैक्स इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, आप उसको सोशल जस्टिस में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को मेंशन कर सकते हैं। Objectives of demolishing untouchability, Article 17 is going to serve the purpose. Here I will remind you, अगर आप पॉलिटी को ध्यान से पढ़ेंगे, this particular provision of untouchability is not only applicable against the state, that is अगर untouchability हुई है तो कोई पुलिस स्टेशन जाकर के स्टेट से फंडामेंटल राइट वायलेशन को भी मांग सकता है, बट दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल, यानी कि स्टेट अगर उनको डिनाई कर रहा है, अनटचेबिलिटी कर रहा है, कहीं पे एंटर करने से मना कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी है। अगर कोई इंडिविजुअल भी आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल, एंड दिस आर्टिकल माइंड यू इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स। सो एनी इंडिविजुअल who is hampering or who is practicing untouchability, the fundamental rights of abolition of untouchability are going to be applicable against such individuals, and justice, social justice has to be ensured by the state in that particular case. John Rawls wheel of ignorance can be applied, that is अगर आपको कहीं पे देखना है तो वहाँ पे उस सोसाइटी में तो आप एक अब्सेंस रखें, अपने आप को डिटैच करें, आपको नहीं पता किसकी क्या सोशल पोजीशन है, और उस सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हुए, दैट वाज आज बाय यूपीएससी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो उन्होंने डायरेक्टली एक जॉन रॉल्स सोशल जस्टिस व्हील ऑफ इग्नोरेंस को उन्होंने पूछा हुआ है। तो इसमें इस पर्टिकुलर फिनोमेना में यू हैव टू ऑब्जर्व द पीपल, हाउ प्रिविलेज दे आर, हाउ डिसएडवांटेज दे आर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नॉलेज ऑफ दीज पीपल्स एक्चुअल पोजीशंस। तो ये आपको व्हील ऑफ इग्नोरेंस लगाना है, एंड देन उसके बाद जो है आपको डिसीजन मेक करना है कि कौन किस प्रॉब्लम में दिख रहा है, उस तरह से उसको उस तरह का रिसोर्स मिले। सो इट्स नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट्स अबाउट सोशल जस्टिस, इट्स अबाउट फेयरनेस। जॉन रॉल्स व्हील ऑफ इग्नोरेंस focuses on fairness, focuses on social justice, focuses on doing some positive discrimination to the people who are more disadvantaged, who need more resources as compared to the people who are affluent. So here we have discussed social justice का हमने definition discuss किया, और social justice को हमने देखा कि public services में अगर आप हैं तो कैसे इंश्योर करेंगे, state कैसे इंश्योर करेगा, आप सिविल सर्वेंट हैं अगर आपको रिपोर्ट करता है कोई, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे इंश्योर करेंगे। फंडामेंटल राइट भी है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। So stay tuned. In our upcoming lecture, we are going to discuss another core concept, that is spirit of service. तो ये spirit of service है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन पार्ट, सर्विस स्पिरिट, एंड वी आर गोइंग टू सी सर्टेन prominent quotations and examples, and how you can practice the spirit of services when you are in civil services. तो इस पे भी कोई क्वेश्चन आता है वो आप आंसर कर सकते हैं इन थ्रू द आवर अपकमिंग लेक्चर, जो भी उसमें स्लाइड्स हैं, जो भी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।